ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 24 ਜੂਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ PCS, PPSC, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਸਡ ਹੋਏਗਾ ਦ ਹਿੰਦੂ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, PIB ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, WhatsApp, Telegram, Facebook, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੈਟਿਕ ਫੈਕਟਸ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾफ़ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ क्रैश कोर्स बाय करना चाहते हो या मॉक टेस्ट सीरीज़ बाय करना चाहते हो तो इस लिंक ਨੂੰ क्लिक करके वैबसाइट ਨੂੰ विजिट करो और ਤੁਸੀਂ अपना क्रैश कोर्स बाय कर सकते हो। किसी भी तरीके का क्रैश कोर्स बाय कर सकते हो। पंजाब पटवारी के लिए क्रैश कोर्स प्रोवाइड किया जा चुका है। PPSC के लिए, PCS के लिए हर एक तरीके का क्रैश कोर्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਹੈ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ UN ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਡਿੰਗ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਇਨ ਦਾ ਓਨਰ ਆਫ ਫਾਦਰ ਆਫ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ PN ਪੈਨੀਕਰ ਦੀ ਓਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਕ ਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਵੀਕ ਔਰ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਸ ਮੰਥ ਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਮੰਥ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੁਆਰਾ TS ਵੈਦਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੁਆਰਾ। ਅਮ੍ਰਿਤਿਆ ਸੇਨ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਨਰ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ। ਕਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ? ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਦ ਜਰਮਨ ਬੁੱਕ ਟ੍ਰੇਡ। ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਦ ਜਰਮਨ ਬੁੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਅਮ੍ਰਿਤਿਆ ਸੇਨ ਨੂੰ। ਫॉर ਹਿਟਸ ਵਰਕ ਔਨ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਟ੍ਰੇਡ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਜਰਮਨ ਬੁੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 32nd ਸਪੈਸ਼ਲ ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਗਰੁੱਪ। 32nd ਮੀਟਿੰਗ ਰਹੀ ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 32nd ਮੀਟਿੰਗ ਰਹੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਡਰ FATF। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 9 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਇੰਡੀਆ। ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਬੈਟਿੰਗ ਮਨੀ ਲਾਉਂਡਰਿੰਗ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਆਫ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ EAG ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਔਰ FATF ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜਿਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਪੈਰਿਸ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 39 ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਗਜ਼ਿਮ ਬੈਂਕ ਜੋ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 20.10 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ 153 ਕਰੋੜ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੇਵਿਡ ਰਸ਼ੀਨਾ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਹੌਸਪੀਟਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਟੂ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਨਾਗੁਆ ਔਰ ਕਰੰਸੀ ਇੱਥੇ ਕੋਰਦੋਬਾਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕੈਪੀਟਲ ਮਨਾਗੁਆ, ਕਰੰਸੀ ਕੋਰਦੋਬਾਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ RBI ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਵਰਨਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਜੋ ਕਿ 24th ਗਵਰਨਰ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨੈਂਸ ਐਂਡ ਪੋਲਿਸੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ RBI ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਧੂ ਰਮਨ ਪੰਚਨਾਥਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ
USA। नैशनल साइंस फाउंडेशन है जो कि USA का है, इस दे विच डायरैक्टर अपॉइंट किया गया है साधु रमन पंचनाथन नूं, साधु रमन पंचनाथन नूं। इंडिया आइडियाज़ समिट, इंडिया आइडियाज़ समिट की गल करिए, इस तो इलावा 45th US इंडिया ट्रेड बिजनेस काउंसल की गल करिए, ये दो इवेंट्स की टाइमिंग अनाउंस की गई है, जुलाई के इन्हों हैल्ड किया जाएगा। 45th USA और इंडिया की ट्रेड बिजनेस, क्वेश्चन इस तरीके नाल भी पूछा जा सकता है कि इंडिया और USA की ट्रेड बिजनेस काउंसल की कितनी मीटिंग हैल्ड की जा रही है, कितनी मीटिंग, 45th मीटिंग। और इंडिया आइडियाज़ समिट, इंडिया आइडियाज़ समिट किहड़ी कंट्री के नाल हैल्ड किया जाता है, USA के नाल। ये दोनों नूं जुलाई दे विच किया जाएगा, दोनों नूं जुलाई दे विच हैल्ड किया जाएगा। नैक्सट है राजस्थान गौरमेंट, राजस्थान गौरमेंट ने की करा, एक एग्रीमेंट साइन किया, एक ट्रीपैट्रिएट एग्रीमेंट साइन किया, यानी कि 3 ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा इसनूं साइन किया गया। फर्स्ट होगी राजस्थान गौरमेंट, इसने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और दूसरी है एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड। इन्हां तिन्हां ने आपस दे विच एग्रीमेंट साइन किया, किस दे लई एग्रीमेंट साइन किया, फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्मॉल क्लासरूम्स इन 100 स्कूल्स, 100 स्कूलों के 100 स्कूलों के 100 स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए जाएंगे, 100 स्कूल्स के स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए जाने के लिए राजस्थान गौरमेंट ने इस एग्रीमेंट को साइन किया। नैक्सट है नैशनल चैंपीयन निकी कल्याकांदा पोनाचा, इन्हों इलैक्ट किया गया, किस इंटरनेशनल टैनिस फैडरेशन की मैनस टैनिस पैनल दे विच, इंटरनेशनल टैनिस फैडरेशन के मैनस टैनिस पैनल दे विच इलैक्ट किया गया एज ए मैंबर। इस तो इलावा इंटरनेशनल टैनिस फैडरेशन का हैडकुआटर लंडन UK दे विच है, लंडन UK दे विच है, और डेविड हैगर्टी इज़ द हेड ने, डेविड हैगर्टी इज़ द हेड ने। नीति आयोग ने की करया, एक पैनल बनाया किस दे लई, जो प्लेटफॉर्म्स दे लई फॉर माइग्रेंट लेबर्स दे लई एक जो प्लेटफॉर्म नूं डेवलप करन दे लई एक पैनल बनाया गया, जिस दे विच गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और होर कई कंपनियां जिवें टेक महिंद्रा होगी, इन्हां कंपनीज़ नूं शामिल किया गया। इस ग्रुप की, इस पैनल की चेयरमैनशिप कौन करनगे, चेयरमैन कौन होणगे, CEO, नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत जो कि नीति आयोग के CEO ने, वो इस पैनल नूं हैड करनगे। 2015 के नीति आयोग बनाया गया सी न्यू दिल्ली दे विच इस दा हैडकुआटर है। इस दे वाइस चेयरमैन की गल करिए राजीव कुमार ने, और चेयरमैन की गल करिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। नैक्सट है जेस्ट मनी और स्टीलैब्स, ये दो कंपनियां ने, दो इंडियन फर्म्स ने, जिन्होंने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की 2000 टैक्नोलॉजी पियोनीयर्स दे विच शामिल किया गया। 2020 की टैक्नोलॉजी पियोनीयर्स की एक लिस्ट जारी की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने, और इंडिया की यह दो कंपनीज़ नूं उस दे विच ऐड किया गया। नैक्सट है मिनवेरा अकैडमी फुटबॉल कप, इसनूं रिकमेंड किया गया राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए मनवेरा अकैडमी फुटबॉल कप नूं रिकमेंड किया गया इन द कैटेगरी ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग ऑफ बर्डिंग टैलेंट। बेसिकली इसनूं रिकमेंड किस द्वारा किया गया, इसनूं रिकमेंड किया गया पंजाब गौरमेंट और फिक्की द्वारा, पंजाब गौरमेंट और फिक्की ने मिल के इसनूं रिकमेंड किया। फिक्की की गल करते हैं तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसकी फुल फॉर्म बनती है। 1927 के इसनूं बनाया गया सी, न्यू दिल्ली के हैडकुआटर है, और इसके हैड ने संगीता रेड्डी इस दे हैड ने। नैक्सट आप चलते हैं, आप डिस्कस कर लेने नैशनल पार्क्स, जिन्ने भी नैशनल पार्क से डिफरेंट स्टेट्स के वो सारे आप डिस्कस कर चुके हैं। हुण आप चलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की, हुण आप डिस्कस करांगे हर रोज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ डिफरेंट स्टेट्स के जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उन्होंने बारे डिस्कस करांगे। सब तो पहले आंध्र प्रदेश के कोरिंगा, कृष्णा और कोंदिया, कोरिंगा कृष्णा कोंदिया ट्रिपल के कोरिंदा कृष्णा कोंदिया याद रखांगे आंध्र प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश दिबंग, कमलांग, केन, मिहाऊ,
दिबांग कमलांग केन मेहाओ, दिबांग कमलांग केन मेहाओ अरुणाचल प्रदेश। असम पोबितोरा गर्म पानी लोए खोवा और बोरनाडी, पोबितोरा गर्म पानी लोए खोवा और बोरनाडी ये 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज असम दियां ने। बिहार की गल करिए भीमबंध कैमूर और गौतम बुद्ध, भीमबंध कैमूर गौतम बुद्ध, भीमबर कैमूर और गौतम बुद्ध बिहार दे विच। गौतम बुद्ध डायरैक्टली याद रह सकती है क्योंकि गौतम बुद्धा जी का जरा काफ़ी टैन्योर है और बिहार दे विच रहा सी, बर्थ भी बिहार का है, करके याद रखना। इस तो इलावा इन्होंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नूं तुसीं याद रखना 3 तो 4 बार रिपीट करना है। 2 या 3 दिन अगर आप इसमें लगातार रिपीट करेंगे अपने माइंड के परफेक्टली सैटअप हो जाएगी। ये कोरिंगा कृष्णा कोंडिया आंध्र प्रदेश, दिबांग कमलांग केन मेहाओ अरुणाचल प्रदेश, पोबितोरा गर्म पानी लोए खावा बोरनाडी असम दे विच, भीमबंध कैमूर गौतम बुद्ध बिहार दे विच। नैक्सट आप अज के फर्स्ट क्वेश्चन के वाल चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल विडो डे, इंटरनेशनल विडो डे, इंटरनेशनल विडो डे किस दिन ऑब्जर्व किया गया? इंटरनेशनल विडो डे नू ऑब्जर्व किया गया, किस दिन ऑब्जर्व किया गया इसनू? 23 जून नू, 23 जून नू इंटरनेशनल विडो डे ऑब्जर्व किया गया। ठीक है जी, याद रखांगे कदों ऑब्जर्व किया गया? 23 जून नू। इस तो इलावा काफ़ी दिन अपन तो स्किप हो गए सी। एक बच्चे ने कमेंट बॉक्स के विच भी दसे कि ये दिन तुसीं स्किप कर दिते ने, उन्होंने डे कर लें। सब तो पहले 18 जून नू ऑटिज़म प्राइड डे, ऑटिज़म प्राइड डे, ऑटिज़म प्राइड डे कदों ऑब्जर्व किया गया? 18 जून नू। 19 जून की गल करिए, 19 जून नू ऑब्जर्व किया गया सिकल सैल, वर्ल्ड सिकल सैल अवेयरनेस डे, वर्ल्ड सिकल सैल बेसिकली खून दे विच पाए जाते हैं सिकल सैल ब्लड दे विच, वर्ल्ड सिकल सैल अवेयरनेस डे 19 जून। 20 जून की गल करिए, 20 जून नू दिन ऑब्जर्व किया गया इंटरनेशनल हॉर्स शू क्रैब डे, इंटरनेशनल हॉर्स शू क्रैब डे, इंटरनेशनल हॉर्स शू क्रैब डे ऑब्जर्व किया गया 20 जून नू। 21 जून की गल करिए, 21 जून नू 3 दिन ऑब्जर्व किए गए। सब तो पहले है वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, हाइड्रोग्राफी डे कदों ऑब्जर्व किया गया? 21 जून नू। वर्ल्ड म्यूजिक डे, वर्ल्ड म्यूजिक डे कदों ऑब्जर्व किया गया? 21 जून नू। वर्ल्ड म्यूजिक डे कदों ऑब्जर्व किया गया? 21 जून नू। ठीक है जी, इस तो इलावा समर सोलिस्टिस डे भी ऑब्जर्व किया गया 21 जून नू। ये सारे दिन याद रखने ने। नैक्सट आप चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर सैंक्शन ₹190 करोड़, बेसिकली 190 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए किहड़े मिनिस्टर द्वारा? किसदे लई? बैटरमेंट ऑफ हैल्थ केयर फैसिलिटीज़, हैल्थ केयर फैसिलिटीज़ नू बैटर करन दे लई, इंप्रूव करन दे लई 8 नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स दे विच, जिहड़ी अपनी 8 नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स ने, अगर आप गल करिए त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, इस तो इलावा नागालैंड और सिक्किम, ये जिहड़ी 8 स्टेट्स ने, इन्हां स्टेट्स नू विच हैल्थ केयर फैसिलिटीज़ नू इंप्रूव करन दे लई प्लस इंक्रीज़ करन दे लई 190 करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया बेसिकली डोनर मिनिस्टर द्वारा। डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन मिनिस्ट्री है जितेंद्र सिंह लवे, जितेंद्र सिंह नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन मिनिस्टर ने उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर तो, उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर तो लोक सभा MP ने, उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर तो लोक सभा MP ने जितेंद्र सिंह। इस तो इलावा बाकी मिनिस्ट्रीज़ की अगर आप गल करिए, श्रीपद येसो नायक, श्रीपद येसो नायक, श्रीपद येसो नायक लवे केड़ी मिनिस्ट्री है? इन्हां लवे आयुष मिनिस्ट्री है, आयुष मिनिस्ट्री है। इस तो इलावा डिफेंस मिनिस्टर भी ने, डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने ये नॉर्थ गोवा तो, नॉर्थ गोवा तो लोक सभा MP ने। किरण रिजिजू, किरण रिजिजू यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने, यूथ
ਅਫੇਅਰਸ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਡਿਪਟੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ MP ਨੇ। प्रहलाद सिंह पटेल कल्चर मिनिस्ट्री ਇਹਨਾਂ ਲਵੇ प्लस टूरिज़म मिनिस्ट्री है, कल्चर और टूरिज़म मिनिस्ट्री है दामोह मध्य प्रदेश, दामोह MP तो, दामोह मध्य प्रदेश तो लोक सभा MP ने। राजकुमार सिंह की गल करते हैं, पावर मिनिस्ट्री ਇਹਨਾਂ ਲਵੇ, पावर न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है, पावर और न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है आरा बिहार तो लोक सभा MP ने राजकुमार सिंह। नैक्सट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, केड़ी स्टेट द्वारा अनाउंस किया गया एक प्रोजेक्ट एक तू खेलो एक तू पढ़ो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग टू एंगेज स्टूडेंट्स ड्यूरिंग कोविड-19 के दौरान की होया कि लॉकडाउन हो गया तो ज़्यादातर की होया बच्चे कैद होके रह गए घर दे विच, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਸਟੱਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਡਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ एक तू खेलो एक तू पढ़ो, जिस दे अंडर एक तू का मतलब है थोड़ा, तो थोड़ा खेलो और थोड़ा पढ़ो दोनों, यानी कि एक पर्टिकुलर बैलेंस दे विच होना चाहिए स्टडी और स्पोर्ट्स। तो इस दे लई यह एक स्टेट द्वारा प्रोजैक्ट लॉन्च किया गया। किहड़ी स्टेट द्वारा इसनूं लॉन्च किया गया त्रिपुरा द्वारा। ठीक है जी, किहड़ी स्टेट द्वारा इसनूं लॉन्च किया गया, त्रिपुरा द्वारा इसनूं लॉन्च किया गया। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं एक होर स्कीम डिस्कस कर लें आपां नागालैंड की। नागालैंड ने की करा, नागालैंड ने कुछ करा नहीं। नागालैंड दे विच जिहड़ा खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जा रहे हैं, खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जा रहे हैं। उस दे विचों नागालैंड 8 स्टेट्स दे विच नागालैंड भी इंकलूडिड सीगा। तो नागालैंड दे विचों जिहड़ी प्लेस चुनी गई है वो अनाउंस कर दी गई है इंदिरा गांधी स्टेडियम। इंदिरा गांधी स्टेडियम है जिहड़ा कि कोहिमा दे विच है। इंदिरा गांधी स्टेडियम कोहिमा नूं चूज़ किया गया है खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिहड़ी 8 स्टेट्स दे विचों नागालैंड दे विचों इसनूं चूज़ किया गया। इस तो इलावा असम की गल करिए तो असम दे विचों एक फैसटिवल है, असम का एक फैसटिवल है जिसनूं कैंसल किया गया। काफ़ी फेमस फैसटिवल है, 5 दिन का एक फेमस फैसटिवल अंबुबाची फैसटिवल, अंबुबाची मेला सीगा जिसनूं गुवाहाटी दे एक मंदिर, अगर आप गल करिए काफ़ी फेमस मंदिर है, एग्जाम दे विच पूछा जा सकता है। कामाख्या टैंपल असम के गुवाहाटी दे विच है। इत्थे एक मेला ऑर्गेनाइज़ किया जाता है अंबुबाची मेला, 5 दिन का एक मेला होंदा है, एनुअल मेला है ये। इसनूं कैंसल किया गया ड्यू टू कोविड-19 के कारण इसनूं कैंसल कर दिता गया। ठीक है जी, ये याद रखना है। अपने लिए स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप गल करिए काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स के सिंगल स्टैटिक क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है डायरैक्टली कि कामाख्या टैंपल किहड़ी स्टेट दे विच लोकेटेड है, या क्वेश्चन नूं होर ज़्यादा बनाने के लिए कि यह किहड़ी स्टेट दे विच, किहड़ी सिटी दे विच लोकेटेड है। नैक्सट है हू विल रिप्रेजेंट इंडिया नूं कौन रिप्रेजेंट करेगा इंडो रशिया डिफेंस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मीट दे विच। इंडिया रशिया की डिफेंस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मीट हैल्ड की जाएगी। इस दे विच इंडिया नूं कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, राजनाथ सिंह। कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राजनाथ सिंह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अपने लिए यह क्वेश्चन वैसे तो आप डिस्कस सिंपली भी कर सकते सी कि जी 7 अगर आप गल करिए वर्ल्ड वॉर 2 का विक्टरी डे ऑबजर्व किया जा रहा है अज कित्थे, रशिया के मॉस्को दे विच। ठीक है, इसे दे नाल इस मीटिंग नूं भी हैल्ड किया जा रहा है इंडिया रशिया की डिफेंस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की मीटिंग। इन्हां दोनों दे विच राजनाथ सिंह जो कि अपने डिफेंस मिनिस्टर ने ये पार्टिसिपेट करनगे, डिफेंस मिनिस्टर ने इंडिया के ये पार्टिसिपेट करनगे। हुण ये क्यों इंपोर्टेंट है, क्योंकि हजे तक जिन्नी अपना देख रहे सी कोई मीटिंग सीगियां, कोई जिहड़ी सारियां मीटिंग सीगियां वो सारियां की हो रही सी वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग दे नाल कीतियां जा रही सी। ठीक है, पर राजनाथ सिंह जिहड़ी यह मीटिंग है ये खुद अटेंड करनगे, फिजिकली जाके अटेंड करनगे। 3 दिन की विजिट है इन्हां दी रशिया, इस करके याद रखना। कौन गए ने, राजनाथ सिंह गए ने, डिफेंस मिनिस्टर ने राजनाथ सिंह।
अमित शाह गांधीनगर गुजरात तो लोक सभा MP ने और होम मिनिस्ट्री इन्हां लवे। नितिन गडकरी लवे MSME मिनिस्ट्री है प्लस हाईवेज मिनिस्ट्री है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री है। नागपुर महाराष्ट्र तो लोक सभा MP ने, नागपुर महाराष्ट्र तो लोक सभा MP ने। राजनाथ सिंह लखनऊ उत्तर प्रदेश तो लोक सभा MP ने और डिफेंस मिनिस्ट्री है। नरेंद्र मोदी अपने प्राइम मिनिस्टर ने, रामनाथ कोविंद इंडिया के प्रेजिडेंट ने। ठीक है जी, हम क्वेश्चन है कि रामनाथ कोविंद किन्नवें नंबर के प्रेजिडेंट ने, किन्नवें नंबर के प्रेजिडेंट ने। नैक्सट है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर, केड़े मिनिस्टर द्वारा अनाउंसमेंट की गई कि हिंदी टेस्ट फ्यूचर लॉन्च किया गया नैशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल एप्लीकेशन के उत्ते बाय नैशनल टेस्टिंग एजेंसी। क्वेश्चन ध्यान नाल सुनना, नैशनल टेस्टिंग एजेंसी ने, नैशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कुछ टाइम पहले अगर आप याद होएगा सानू नैशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई सी। बेसिकली डिफरेंट अगर आप गल करिए IIT स्टूडेंट्स के लिए या JEE AAA की जी तैयारी कर रहे हैं, नीट की जी तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने स्टूडेंट्स को मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाने के लिए इसनू लॉन्च किया गया। हुण इस दे विच हिंदी टेस्ट फ्यूचर लॉन्च किया गया, ऐड किया गया। इसकी अनाउंसमेंट किस द्वारा की गई? ऑबवियस है इसनू HRD मिनिस्ट्री द्वारा अनाउंसमेंट की गई होगी। और कौन ने HRD मिनिस्टर? रमेश पोखरियाल निशांक। रमेश पोखरियाल निशांक HRD मिनिस्टर ने, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर ने। और हरिद्वार उत्तराखंड तो लोक सभा MP ने। राम विलास पासवान की गल कर लें। राम विलास पासवान बेसिकली राज्य सभा MP ने बिहार तो, राज्य सभा MP ने बिहार तो राज्य सभा MP ने। इन्हां लवे मिनिस्ट्री है कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री। अर्जुन मुंडा ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर ने। खूंती झारखंड तो लोक सभा MP ने। अर्जुन मुंडा नूं रिसेंटली अगर आप गल करिए शूटिंग फैडरेशन का प्रेजिडेंट अपॉइंट किया गया सी। सुब्रमण्यम जयशंकर जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने। और इन्हां लवे राज्य सभा MP गुजरात तो ने। डॉक्टर हर्षवर्धन चांदनी चौक दिल्ली तो लोक सभा MP ने। हैल्थ मिनिस्टर ने इंडिया के। इस तो इलावा साइंस एंड टैक्नोलॉजी मिनिस्टर ने प्लस अर्थ साइंस मिनिस्टर ने। इन्हां ने रिसेंटली महाराष्ट्र दे विच आई फ्लोज एक फ्लड वार्निंग सिस्टम अर्थ साइंस मिनिस्ट्री होने करके इन्हां लवे इन्हां ने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के नाल मिल के लॉन्च किया सी आई फ्लोज एक फ्लड वार्निंग सिस्टम मुंबई महाराष्ट्र के विच। यह भी याद रखना। नैक्सट है हु इनोग्रेट्स इंडियाज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड फर्स्ट वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020। एक्सपो तो सूँ याद आया होएगा डिफेंस एक्सपो का 11th एडिशन लखनऊ दे विच हेल्ड किया गया सी। ठीक है जी। हुण इसी तरीके का एक हैल्थ केयर डिफेंस एक्सपो है, ये हैल्थ केयर और हाइजीन एक्सपो है। हैल्थ केयर और हाइजीन एक्सपो है इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट और पहला वर्चुअल है ऑर्गेनाइज किया गया फिक्की द्वारा इसनू ऑर्गेनाइज किया गया। किस द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? फिक्की द्वारा। और इनोग्रेट किसने किया है? इनोग्रेट किया है मनसुख लाल मंडाविया ने। मनसुख लाल मंडाविया द्वारा इसनू इनोग्रेट किया गया। काफ़ी इंपोर्टेंट है। मनसुख लाल मंडाविया ने इसनू क्यों इनोग्रेट किया है? हालांकि इन्हां लवे शिपिंग मिनिस्ट्री है। केड़ी मिनिस्ट्री है? शिपिंग मिनिस्ट्री इन्हां लवे, पर यह डिप्यूटी कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर भी ने। इन्होंने एज ए डिप्यूटी कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर राज्य सभा MP ने। यह गुजरात तो राज्य सभा MP ने। इन्होंने एज ए डिप्यूटी कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर इसनू इनोग्रेट किया है, जिसनू ऑर्गेनाइज किया गया बेसिकली फिक्की द्वारा। किस द्वारा? फिक्की द्वारा इसनू ऑर्गेनाइज किया गया। कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री की गल करिए तो DB सर्बानंद गौड़ा लवे है।
DB ਸਰਬਾਨੰਦਾ ਗੌੜਾ ਲਵੇ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲਸ ਐਂਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ बेंगलुरु करनाटका तो लोक सभा MP ने बेंगलुरु करनाटका तो लोक सभा MP ने। बाकी मिनिस्टर्स की अगर आप गल करते हैं गिरिराज सिंह एनीमल हसबेंडरीज मिनिस्टर ने। इस तो इलावा फिशरीज मिनिस्ट्री है इन्होंने एनीमल हसबेंडरी फिशरीज मिनिस्ट्री है। बेगूसराय बिहार तो लोक सभा MP ने। संतोष कुमार गंगवार लेबर एंड एम्पलॉयमेंट मिनिस्ट्री इन्होंने लेबर एंड एम्पलॉयमेंट मिनिस्ट्री है। बरेली उत्तर प्रदेश तो लोक सभा MP ने। राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम हरियाणा तो लोक सभा MP ने। और इन्होंने लवे प्लैनिंग मिनिस्ट्री है सब तो पहले। इस तो इलावा स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन प्लैनिंग स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री है राव इंद्रजीत सिंह दे लवे। नैक्सट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट केड़ी स्टेट द्वारा प्लान की गई जॉब गारंटी स्कीम अर्बन पुअर दे लई। एक स्टेट है जिसकी लॉन्च करन जा रही है जॉब गारंटी स्कीम अर्बन पुअर दे लई। बेसिकली मनरेगा एक्ट की अगर आप गल करते हैं तो मनरेगा एक्ट दे तो काफ़ी ज़्यादा प्लस करके इनकम ऐड की जाएगी जॉब गारंटी स्कीम के अंडर। बेसिकली ये स्किल के उत्ते डेवलप करेगा कि किस तरीके की स्किल प्रोवाइड कर रहा है जोड़ा परसन है जो उस किस तरीके की स्किल है वो किस तरीके काम कर रहा है केड़ा काम कर रहा है उसके उत्ते डिपेंड करेगी उसकी इनकम जॉब गारंटी स्कीम के अंडर जिसनों अर्बन प्योर जो अर्बन एरियाज़ के पुअर लोग ने गरीब लोग ने उन्होंने लिए लॉन्च किया जाएगा। किहड़ी स्टेट द्वारा झारखंड द्वारा इसनों लॉन्च किया जाएगा। झारखंड द्वारा ही रिसेंटली बिरसा हरित ग्राम योजना लॉन्च किया गया सी। वीर साहिब पोटो हो खेल विकास स्कीम नूं भी लॉन्च किया गया सी झारखंड द्वारा। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना नूं भी झारखंड द्वारा ही लॉन्च किया गया सी। नैक्सट है बिहार की गल कर लेने। बिहार ने जरदालू मैंगो और शाही लीची के लिए एग्रीमेंट साइन किया सी गौरमेंट ऑफ इंडिया के नाल। उत्तर प्रदेश की अगर आप गल करिए रिसेंटली हर्बल रोड आप डिस्कस की 800 किलोमीटर दियाँ। इस तो इलावा टीम 11 प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन काउ स्लोटर एक्ट में अमेंड किया सी। ये सारा उत्तर प्रदेश का है। उत्तराखंड बारे आप डिस्कस कर चुके हैं। उत्तराखंड बारे अगर आप गल करिए त्रिवेंद्र सिंह रावत इत्थे दे चीफ मिनिस्टर ने। इत्थे की कहते हैं ऋषिकेश दे विच लॉन्च किया जा रहा है लक्ष्मण झूला नूं रिप्लेस करने के लिए की बनाया जाएगा पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज बनाया जाएगा। गारसेन समर कैपिटल अनाउंस की गई है। उत्तराखंड की समर कैपिटल अनाउंस की गई है गारसेन। छत्तीसगढ़ ने डिजिटल स्टेट्स ऑफ इंडिया रैंकिंग नूं टॉप किया से। बिल्कुल रीसेंट की न्यूज़ की गल करिए अगर आप छत्तीसगढ़ की तो रोका चीका एक टैक्नीक यूज़ की जाएगी जिस ट्रैडिशनल मैथड्स एग्रीकल्चरल ट्रैडिशनल मैथड्स यूज़ किए जाएंगे रूरल इकनॉमी को इंक्रीज़ करने के लिए छत्तीसगढ़ द्वारा। ठीक है जी, ये याद रखने ने सारे फैक्ट। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट एंबेसडर टू जिम्बाबे कंट्री की गल करिए। जिम्बाबे के नवे एंबेसडर इंडिया वालों जिम्बाबे के लिए नवे एंबेसडर अपॉइंट किए गए हैं विजय खंडूजा नूं इंडिया वालों एंबेसडर अपॉइंट किया गया जिम्बाबे का। हालांकि अपने अगर आप गल करिए अपने एग्जाम के PC अगर पटवारी की गल कर लें तो PSCB क्लर्क के एग्जाम की गल कर लें इस एंबेसडर पूछे जाने का चांसिस काफ़ी ज़्यादा घट होंगे। इस पूछे जाएगा जिम्बाबे की कैपिटल और करंसी। उन्हें न्यूज़ के रह चुकी है इस करके जिम्बाबे की कैपिटल और करंसी की होएगी। जिम्बाबे की कैपिटल की सी हरारे है जिम्बाबे की कैपिटल और US डॉलर इत्थे करंसी चलती है। इस तो इलावा गायत्री आई कुमार UK के इंडियन एंबेसडर टू UK अपॉइंट किए गए सी। रवीश कुमार फिनलैंड इंडियन एंबेसडर टू फिनलैंड। CB जॉर्ज इंडियन एंबेसडर टू कुवैत अपॉइंट किए गए सी। मोनिका मोहिता
इन्हां नूं रीसेंटली बिल्कुल रीसेंटली डिस्कस किया सी। इन्हां दा नाम स्विट्ज़रलैंड दे लई स्विट्ज़रलैंड दे एंबेसडर अपॉइंट किया गया सी। ठीक है जी। हुण जिहड़ी कंट्रीज़ आ गई इन्हां दी कैपीटल और करंसी पता है। फिनलैंड की कैपीटल की है हेलसिंकी, कुवैत की कैपीटल कुवैत सिटी, स्विट्ज़रलैंड कैपीटल बर्न। ये सारे फैक्ट्स याद होने चाहिए ने। ठीक है जी, इंपोर्टेंट बनणगे अपने एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है हु इज़ अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज अ सबसिडरी ऑफ RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गल कर लें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सबसिडरीज बेसिकली RBI की कितनी सबसिडरीज ने? 4 सबसिडरीज ने। RBI की 4 सबसिडरीज कंपनी ने। इन्हां दे विचों एक है IFTAS इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज इसके चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं। इसके चेयरमैन नवे अपॉइंट किए गए हैं, इसलिए इन्हों का नाम इंपोर्टेंट रहेगा TB रविशंकर। टी रविशंकर नूं चेयरमैन अपॉइंट किया गया किसका? इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज का। ठीक है जी, इन्हों का नाम याद रखांगे। इस तो इलावा N राजेंद्रन नूं इसे का CEO अपॉइंट किया गया। 2 अपॉइंटमेंट्स ने इंपोर्टेंट। IFTS दियाँ चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं T रविशंकर और CEO अपॉइंट किए गए हैं N राजेंद्रन इसके चेयरमैन अपॉइंट किए गए। बाकी ऑप्शन के विच साधु रमन पंचनाथन उन्हें आप डिस्कस किया USA दे विच नैशनल साइंस फैडरेशन का डायरैक्टर अपॉइंट किया गया। नैशनल साइंस फाउंडेशन का डायरैक्टर अपॉइंट किया गया साधु रमन पंचनाथन नूं, इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट ने। वोल्कन बोजकीर ये कित्थों बिलोंग करते हैं? टर्की तो बिलोंग करते हैं वोल्कन बोजकीर। इन्हों रिसेंटली प्रेजिडेंट अपॉइंट किया गया सी। यूनाइटेड नेशनस की जनरल असैंबली का। कमेंट बॉक्स में आंसर देना किन्नवा एडिशन ने जी यूनाइटेड नेशन जनरल असैंबली की किन्नवीं मीटिंग है जिसका प्रेजिडेंट अपॉइंट किया गया टर्की के वोल्कान बोजकीर नूं। अनमोल नारंग फर्स्ट सिख बने सी USA की मिलिट्री अकैडमी तो ग्रैजुएट होने वाले अनमोल नारंग फर्स्ट सिख परसन बने सी। RBI की सबसिडरीज की गल कर लें। हुणे आप डिस्कस करके हटे। इन्हां दे विचों एक IFTAS इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। रैबिट रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। BRB NMPL भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। हुण अगर आप गल करिए अपने लिए की इंपोर्टेंट है, अगर तो आप डिस्कस करिए बैंकिंग एग्जाम की, तो बैंकिंग एग्जाम के सारे इंपोर्टेंट ने, इन्हां दी फंक्शनिंग भी इंपोर्टेंट है। अगर आप गल करिए अपने स्टेट लैवल एग्जाम्स की, तो इन्हां दी फुल फॉर्म इंपोर्टेंट बन जाती है। फुल फॉर्म कितने ना कितने पूछी जा सकती है, कोई ना कोई न्यूज़ के विच। अगर आप गल करिए DICGC पिछले 2-3 महीने पहले आई थिंक यह न्यूज़ के जो इसने अपनी लिमिट नूं 1 लाख तो ज़्यादा करके 5 लाख कर दी थी। बेसिकली ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। अगर आप बैंक के विच अपना कोई मनी रखते हैं तो उसके उत्ते इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। तो यह न्यूज़ के विच होने करके एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी जी इंश्योरेंस है वो कितना कर दिता गया। पहले 1 लाख तक का इंश्योरेंस दिता जाता सी, हुण 5 लाख दिता जा सकता है। और इसकी फुल फॉर्म इंपोर्टेंट बन जाएगी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। सिमिलरली इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। ये 2 फुल फॉर्म तो अपने लिए वैरी इंपोर्टेंट बननगियां, बाकी भी याद रखनियां ने। नैक्सट आप चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन डिपार्टमेंट, किहड़े इंडियन डिपार्टमेंट ने कोलैबोरेट किया इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम दे नाल। की लॉन्च करने के लिए डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। एक प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम कौन लॉन्च करेगा? इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम इसनू लॉन्च करेगा।
ठीक है जी। हुण इसनूं लॉन्च किया जाएगा किहड़े इंडियन डिपार्टमेंट नाल मिल के? नीति आयोग दे नाल। नीति आयोग के रिलेटेड एक न्यूज़ आप कल डिस्कस की, एक हुण कर रहे हैं कि यह इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम, बेसिकली अगर इंडिया की गल करिए, इंडिया इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के 2008 तो मैंबर है। ये की कह रहा है कि हवा दे विच पोल्यूशन नू कंट्रोल करने के लिए कार्बनाइजिंग जी डीकार्बनाइजिंग है, इसनू शुरू किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट्स नू उन्होंने जिहड़े ट्रांसपोर्ट ने उन्होंने डीकार्बनाइज तरीके नाल बनाया जाएगा, यानी कि घट तो घट कार्बन एमिशन होवे और जिस दे नाल पोल्यूशन नू कंट्रोल किया जा सके। सिमिलर तरीके का एक MOU साइन किया गया सी, तुहानूं याद होएगा 2 दिन पहले आप डिस्कस किया सी। किसने किया सी? इन्फोसिस ने। इन्फोसिस की गल करते हैं। इन्फोसिस ने की करा? एमाजोन के नाल पार्टनरशिप की। एमाजोन के नाल कार्बन एमिशन नू रिड्यूस करने के लिए पार्टनरशिप की सी। जीरो नेट एमीटर तुहानूं इस तरीके तो याद आ गया होगा, जीरो नेट कार्बन एमीटर, इस तरीके का एग्रीमेंट साइन किया सी इन्फोसिस ने एमाजोन के नाल। इस तो इलावा इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की गल करते हैं, किन्ना लवे है? प्रकाश जावड़ेकर लवे। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री प्रकाश जावड़ेकर लवे है। इस तो इलावा इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी ने। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री हुणे आप डिस्कस करके हटे हैं, नितिन गडकरी लवे है ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री। नागपुर महाराष्ट्र तो लोक सभा MP ने। DRDO की कुछ पुरानी न्यूज़ की अगर आप गल करिए तो अल्ट्रा स्वच्छ लॉन्च किया DRDO ने। सुमेरू पैक्स भी डेवलप किए थे DRDO ने। इस तो इलावा बिल्कुल रिसेंटली इन्होंने जर्मी क्लीन सैनिटाइजिंग चैंबर भी लॉन्च किया DRDO ने। NHAI नैशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिसेंटली न्यूज़ के विच किस करके इन्होंने अनाउंस किया सी? फुली डिजिटल होने का अनाउंस किया। सुखबीर सिंह संधू इस दे चेयरमैन ने। नैशनल हाईवे अथॉरिटी के उत्ते रिसेंटली सेबी द्वारा किन्ने लख का फाइन किया गया सी? 7 लाख का। यह भी याद रखना किन्ने लख का? 7 लाख का फाइन किया गया सी सेबी द्वारा। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी द्वारा सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सारे फैक्ट्स याद रखने ने। नैक्सट है अटल इनोवेशन मिशन की गल करते हैं। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग का एक पार्ट है। नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया सी अटल इनोवेशन मिशन। इसने पार्टनरशिप की, किस दे नाल पार्टनरशिप की? इनोवेशन और एंटर्नशिप इनिशिएटिव के लिए। इसने पार्टनरशिप की कोल इंडिया के नाल। कोल इंडिया लिमिटेड के नाल पार्टनरशिप की। किसने पार्टनरशिप की? अटल इनोवेशन मिशन ने। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग द्वारा। कोल इंडिया लिमिटेड की गल करिए 1975 के विच बनाया गया सी। न्यू दिल्ली के विच इसका हैडकुआटर है और इसके चेयरमैन ने प्रमोद अग्रवाल। कोल इंडिया लिमिटेड के न्यू दिल्ली के विच नहीं, इसका हैडकुआटर कोलकाता के विच है। कोलकाता वेस्ट बंगाल के विच इसका हैडकुआटर है। कोल इंडिया लिमिटेड का हैडकुआटर कोलकाता वेस्ट बंगाल के विच है और प्रमोद अग्रवाल इस दे चेयरमैन ने। ठीक है जी। इस तो इलावा अगर आप गल करिए बाकी चीज़ों की, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हैड का नाम तुसी कमेंट बॉक्स के दसना। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हैड का नाम तुसी कमेंट बॉक्स के दसने। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की गल करिए के सिवान इस दे हैड ने। 15 अगस्त 1969 में बनाया गया सी इसरो। 15 अगस्त 1969। इस तो इलावा बेंगलुरु कर्नाटका के विच हैडकुआटर है इसरो का। इंसोलवेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के चल रहा है। अगर आप गल करिए इस मंथ के विच 2 कमेटियां अनाउंस की गई ने इन्होंने द्वारा। 2 कमेटियां जिस दे विचों एक कमेटी के हैड बने सी TV मोहनदास पाई समथिंग इस तरीके का नाम सीगा। PAI आप डिस्कस किया सीगा। ये बेसिकली इन्होंने कमेटी बनाई सी सर्विस प्रोवाइडर्स के उत्ते। आई थिंक सर्विस प्रोवाइडर्स के उत्ते कमेटी बनाई सी, मेरे पूरी तरीके नाल याद नहीं है। सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए कमेटी बनाई सी जिस दे विच हैड अपॉइंट किए गए सी TV मोहनदास पाई और रिसेंटली उदय कोटक
एक कमेटी के हैड अपॉइंट किए गए जिसनों IBBI द्वारा ही बनाया गया, उसनों बनाया गया सी समथिंग मनी लिक्विडेशन के लिए, मनी लिक्विडेशन के लिए। ठीक है जी, ये याद रखने ने सारे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पार्टनर्ड विद UNWFP यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के नाल पार्टनरशिप की। इंडिया की किहड़ी IIT ने यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के नाल पार्टनरशिप की टू ऑफर रिसर्च बेस्ड सोल्यूशन टू स्टोरेज सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स। हुण फूड प्रोग्राम दी है तो इसने किस लिए पार्टनरशिप की? स्टोरेज और सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स। हुण फूड ग्रेन्स है फॉर एग्जाम्पल अगर आप गल करिए कणक हो गई, वीट, राइस हो गई या डिफरेंट वैजीटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गई, इन्हां दी जिहड़ी क्रॉप्स ने ये की हो जाती खराब हो जाती ने प्रॉपर तरीके दे नाल पूरी कंट्री दे विच सप्लाई ना होने कारण काफ़ी हद तक अगर आप गल करिए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट इन्हां दी खराब हो जाती है। ठीक है, उसनूं रोकण दे लई और अच्छे तरीके नाल उन्हां नूं स्टोर करन दे लई रिसर्च की जाएगी। रिसर्च के लिए पार्टनरशिप की यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के नाल। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के नाल किसने की पार्टनरशिप? ये IIT दिल्ली ने। किसने पार्टनरशिप की? IIT दिल्ली ने यह पार्टनरशिप की है। नेक्स्ट IIT मंडी। सब तो पहले IIT मंडी द्वारा एक रैम डेवलप की गई, हाई स्पीड मैगनैटिक रैंडम असैस मैमरी। इस तो इलावा हिमाचल प्रदेश के फार्मर्स दी इनकम नू इंक्रीज करने के लिए एक इन्फ्यूजन टैक्नोलॉजी भी बनाई गई IIT मंडी द्वारा। IIT बॉम्बे द्वारा डिजिटल स्टैथोस्कोप डेवलप किया गया IIT बॉम्बे द्वारा। IIT गांधी नगर द्वारा प्रोजैक्ट आईसैक लॉन्च किया गया। IIT रोपड़ द्वारा वार्ड बोट नाम का रोबोट डेवलप किया गया मेडिसिन प्रोवाइड करवाने के लिए। हुण अपने लिए इंपोर्टेंट बनते हैं यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के इफैक्ट। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की अगर आप गल करिए तो रोम इटली के इस दा हैडकुआटर है। अगर आप गल करिए फूड के रिलेटेड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो डायरैक्ट एक रट्टा लगा लो कि रोम इटली के हैडकुआटर है। FAO फूड एंड FAO की अगर आप गल करिए फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हैडकुआटर भी कितने है? रोम इटली के। ठीक है, 36 मैंबर कंट्रीज़ ने इसदियाँ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दियाँ। इसके हैड ने डेविड बिस्ले इसके हैड ने। ठीक है जी, रोम अपने लिए सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंट नाम याद रखांगे कि रोम इटली के हैडकुआटर है 36 मैंबर कंट्रीज़ ने। अज दे लिए बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होगा। सैशन नूं लाइक और शेयर जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।